नमस्कार। आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर शिल्पा गांधी, जो कि नागपुर की एक प्रसिद्ध थोरेसिक सर्जन है। उन्होंने एमबीबीएस और डीएनपी जनरल सर्जरी के बाद 2018 में डीएनपी थोरेसिक सर्जरी पूरी की है। डॉक्टर शिल्पा गांधी ने एडवांस वेट्स, फेफड़े का प्रत्यारोपण, वियना और रोबोटिक ड्राई लैब रोमानिया जैसी कई अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप्स की हैं। वर्तमान में वे मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर से जुड़ी हुई हैं और गांधी चेस्ट क्लिनिक की ओनर हैं। इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और कई मेडिकल किताबों में भी योगदान दिया है। आज हम इनसे उनके अनुभव, उपलब्धियां और आने वाले समय में उनके विजन के बारे में जानेंगे। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर शिल्पा गांधी जी इन अवर स्टूडियो। Thank you, Nishaji. Thank you for such a warm welcome and kind words of, introduction. And yeah, let's see how it goes. बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू, मैं अपने दर्शकों को आज ये बताना चाहूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, वो नशे, धूम्रपान में कहीं न कहीं लिप्त है। लेकिन उन सब के बाद भी सही डॉक्टर के पास जाकर और उनसे डायग्नोस होना और उसके बाद में एक पुरानी और स्वस्थ जीवन शैली में लौटने के लिए ये इंटरव्यू आज आपको काफ़ी कारगर मदद साबित कर सकता है। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के इस पहले सवाल से, नागपुर शहर में इस क्षेत्र में काम करने की चुनौतियाँ और अवसर क्या-क्या लगे मैम आपको? हाँ, बहुत ही yes, it's a very, I think also very important question. बहुत ही realistic question है. मेरा जन्म नागपुर में हुआ है. I'm born and brought up here. Basic education भी नागपुर में हुआ है. But suddenly I just lost touch of my own city. But for at least 14 years. And तो ये 14 years में मैंने ये सब किया जो आपने मतलब literally introduction में मुझे बताया, my extravagant and grand education, and then all these expertise and skills acquiring. So after all this vanvas, I came back to Nagpur. My hometown was calling me, so my hometown literally, and so the whole idea of coming back was कि सीख तो लिया है इतना सब, right? लेकिन आपको you need to use those skills. And नागपुर में ऐसा कोई था नहीं. नागपुर of course मेरे मतलब मेरा जन्म स्थल है, तो पहला रीजन और पहला सिटी वही था विजन में. बट ये एक्सपर्टीज यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी. So I saw it as a green opportunity or a great opportunity to give it back to my own people, my own, not just my own country, but to my own city, my own people. The same care which I received while working abroad, and that was the reason I would say why I literally landed up back in Nagpur. And आपने जो बोला था opportunities, so this is like the reason as well as the opportunities यहाँ भरपूर है. It is just that you need to reach out to the right people through the right medium. You just need to let people know, or the patients know, that yes, you are here available to offer your services. Challenges मैं कहूँगी yes काफी है, and that is going to be a separate it's a big answer. So challenges ये है कि नागपुर की इकलौती क्वालिफाइड thoracic surgeon हूँ मैं. But I think people still do not know that the region still do not know that they need a super specialty, or a dedicated specialty which is delivering services only in one organ or one part of their body. क्योंकि हम सक्सेस के पीछे नहीं भागते, हम एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं. एक्सीलेंस में लेकर आई हूँ, but just that people should know that they have some excellence, or some core specialty existing. And this is mostly the challenge, is just to make your surrounding doctors, surrounding patients, surrounding people, make them aware, and then that you're the best choice for their patients, or for yourself, if you're a patient, or if there's a patient coming, so you're the best choice. And
So number one was generating awareness, and utilizing the potential. And number two, I specialize in keyhole thoracic surgery. It's a keyhole practice which is very commonly used in Europe. It's a very European practice, European and Chinese practice, and now it has gone worldwide. So I specialize in that. And yes, again, the same thing. I need to, deliver all these minimally invasive skills and expertise to my patients. So, इससे क्या होता है कि हम probably we're giving or trying to give a world class care to patients here, and in much affordable, feasible, approachable conditions, and costs. And they are getting the best results, or probably it's they who are winning this game rather than the doctors, or rather than me myself. So I think yes, so most of my patients, they get the best results, and they resume their services, or they resume their job as soon as the keyhole surgery has been successfully conducted. So I think this is my gist of coming back to Nagpur and exploring the potential. Yeah. वी हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स कि लोग अब्रॉड में पढ़ने जाते हैं फिर वहीं बस से रहते हैं, वहीं के हो जाते हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि को ही कर्म भूमि बनाना ये बहुत कम लोगों में आता है। आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? So I think it was a बहुत अच्छा experience था, it was overwhelming, and something that was not planned. I'll be very honest. So this was not something strategized. It was not planned, but I think when the time is right, when it's say destiny is something really existing. When the time is right, things literally fall in your place, or in your life at various occasions and various time periods. तो yes, चीजें मिलते गई और opportunities मिलते गई, but then yes, आपको भी हम perform करते गए, result आते गए, and that's how I was in a position to represent India, in 2-3 countries in my training period, and even after that, it was an extremely rewarding experience. Needless to say that, yeah. सो अब इंटरव्यू को अगले पड़ाव पर लेकर चलते हैं और जानेंगे थोरेसिक सर्जरी के बारे में कि थोरेसिक सर्जरी क्या है, थोरेसिक सर्जन का काम क्या होता है, थोरेसिक सर्जरी और कार्डियक सर्जरी में क्या डिफरेंस है, थोरेसिक सर्जरी में कौन से ऑर्गन्स कवर होते हैं मैम? Good. Thoracic surgery, really, it's a very technical term. I would say a more scientific term. लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, ये है छाती रोग विशेषज्ञ। एंड और भी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कहूंगी कि छाती रोग चिकित्सक या शल्य चिकित्सक, विच मीन्स द चेस्ट रीजन, उसमें जो भी ऑर्गन्स है दैट आर डेल्ट बाय द thoracic सर्जन। तो मैंने जब यहाँ पे काम करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो everybody was getting confusing me with, oh, you're a cardiothoracic surgeon. Then I have every time, literally every single time of my introduction, I've said, no, I'm not a cardiothoracic surgeon. I'm a thoracic surgeon, which means cardiac surgeons are the ones who are doing bypasses. Yeah. They do all the heart operations, and they're primarily वो mainly उनका जो focus रहता है surgery का, वो heart bypass और valves and heart से related सारे operations करना। अब जो बच जाता है heart के आसपास, उसके there are 2 organs, lungs, then lungs के आसपास there are major, there are many other organs, esophagus है, lymph nodes कहते हैं हम, sympathetic chain है, thoracic duct है, फिर एक muscle which separates, जो हमारे पेट और छाती को separate करती है, diaphragm. So all these organs, ये सारे thoracic surgery में आते हैं। इन सारे surgeries और इन सारे organs को deal करने के लिए your best choice should be a thoracic surgeon, of course. So yeah.
न्यूमेक्टोनोमी और लैपेक्टोमी में क्या फ़र्क होता है सर? या सो निमोनेक्टमी और लोबेक्टमी, लंग को हम जब निकालते हैं, जब हम लंग को पूरी तरह निकाल देते हैं, मतलब एंटायर लंग इज टेकन आउट, तो उसे हम निमोनेक्टमी कहते हैं। एंड लंग अदरवाइज कोई भी एक लंग, जैसे राइट लंग है, इसके 3 हिस्से हैं, राइट है, अपर है, मिडिल है, लोअर है, एंड लेफ्ट में ऐसे ही 2 हिस्से हैं, अपर एंड लोअर। तो अगर हम इनमें से जब कोई एक आधा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा निकालते हैं, जैसे अपर लोब या अपर पार्ट निकाल दिया, तो उसको हम लोबेक्टमी कहते हैं। तो निमोनेक्टमी इज जब हम पूरा का पूरा एक लंग, आइदर राइट और लेफ्ट, वो पूरा निकाल दें, देन दैट इज कॉल्ड एज अ निमोनेक्टमी। मैम इन टुडेज़ लाइफ़स्टाइल की हम जहाँ पर रह रहे हैं आज टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में, मेट्रो लाइफ़स्टाइल्स में, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम है ड्यू टू ग्रीन कॉरिडोर। तो ऑलरेडी जो लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों में पाई जा रही हैं। तो ऐसे में किस तरह के मोस्टली पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? यस, यू आर राइट, एक्चुअली ये प्रॉब्लम ज्यादा तो मेट्रो सिटीज की है। सो ग्रीनरी इज लाइक गोइंग रिड्यूसिंग, एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। अभी तक के तो हम सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली, बॉम्बे, ऑल दीज, इन्हीं की बात करते थे। अब लेकिन अब चलो नागपुर की अगर हम बात करते हैं, एवरी हाउस हैज अ मिनिमम 2 cars। दैट्स एवरेज, लिटरली एवरी decently earning house is having at least a 2 car, and less decent but might be having nothing but at least 1 car. So I think ये जो है car pollution है, and other sorts of air pollution, lot of industries, too much of construction going, the road construction, it's a never ending one. So all these are factors which are really increasing our pollution, even in our city. एंड यस, इसकी वजह से ब्रोंका जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक सिम्टम्स, वो तो डेफिनेटली बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस बढ़ गया है, एयरवेज जो उसकी लाइनिंग होती है वो जाड़ी होने लग जाती है, वो थिक होने लग जाती है, उसमें सिक्रीशंस थोड़े और आ जाते हैं। सो खांसी, बेवजह की खांसी, ये सारे सिम्टम्स बढ़ गए हैं। लेकिन अगर मैं और थोड़ा अपना दायरा बढ़ाऊं अगर सिम्टम्स का, तो जैसे गंभीर चीजें वो भी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, वो आज के युवा पीढ़ी हर तरह का स्मोकिंग करती है, वेदर इट इज जस्ट लाइक अ सिगरेट स्मोकिंग, और इफ नॉट सिगरेट्स, then there are vapes are available. All these are very available, easily available nowadays, and car smokes and all of those things. इसकी वजह से लंग कैंसर्स का ये जो इंसिडेंस है वो काफी बढ़ रहा है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बट आई थिंक यस, द पर्सन, सो इफ यू हैव 2 people around you, one is a smoker, one is a not a smoker, risk of the person who is already a smoker, उसका 15% रिस्क ज्यादा हो जाता है फ्यूचर में लंग कैंसर डेवलप करने का, एज कम्पेयर टू द वन हु हैज नेवर स्मोक्ड एट ऑल। दीज आर द वेरी इंक्रीजिंग रिस्क फैक्टर्स, जिसके तरफ हम सबने, और नॉट जस्ट युवा पीढ़ी बट हम सबने जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए। तो yes, I think this is the most important point. And dietary अगर हम बोले तो yes, red meats and all, but इसका marginal है, like a small amount of, a small contribution is because of some unhealthy dietary habits, like consuming red meats and all. That also contributes to cancers, I can say, not just esophagus but also lung cancers. Yes. So Ma'am, we all read on sachets and packets की खराब बीड़ी, तंबाकू are injurious to health. But अगर आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में देखा जाए तो नॉट जस्ट मैन बट वुमेन आल्सो कंज्यूम दीज थिंग्स yes. एंड फॉर अ वुमेन उनकी लाइफस्टाइल के लिए ये कितना ज्यादा हानिकारक हो जाता है? Yes, I think देखिए, ऐसा तो ये तो, so women, lung cancer in women, it's now a rising problem. It wasn't in the past. So ये तो, so if I talk about Western countries like UK and United States, so it's not, it's quite common to see both men and women. It's literally part of their culture. So both of them are smoking, and it's very common. But in India, strangely, yes, women have also have an increase in the indulgence to smoking. अब वो बढ़ रहा है, इसलिए उन लोगों में भी lung cancer का risk जो है is now equal to the men
who are smoking. So अब तो मतलब दोनों बराबर है, men हो या women, but anybody who is smoking, उनके risk factors equal है. मतलब 15% of chances of, even if you're a woman, there is no extra protection that you have. So you in developing lung cancer. Women smoking, I think, yes, not just the lung. There are various other organs it affects. सबसे important is your reproductive organs and then fertility. इन सबको भी affect करता है. So I think smoking or women smokers, I would say, बहुत ज़्यादा वो है हानिकारक उनके लिए. If we compare with the long-term health, it is dangerous, I would say. Ma'am, is this genetic? The women who are conceiving a baby, and ये genetic अगर है तो उनके babies में भी आ सकती है lung related problem? Some of the diseases, yes, they can be genetic, which means, I mean, कि अगर mother को था तो child में जा सकता है. Not just cancers, I will say, like emphysema है, उसका कुछ emphysema के ना मतलब लिटरली 10 से 15 कॉजेज हैं, तो 10 से 15 रीजंस की वजह से एम्फेजिमा हो सकता है. तो यस, उसमें से कुछ है जिनमें जेनेटिक पासिंग का जो चांस है वो रहता है, या जेनेटिकली ट्रांसफर होने का चांस बेबी में वो रिस्क रहता है. सर्टेन लंग पैथोलॉजीज, सम histiocytosis and all these things, Langerhans histiocytosis and some connective tissue disorders in the lung. ये सब का है chance that they can be transferred from the parents or from the mother to the child. मैम, आप नागपुर के पहले थोरेसिक सर्जन हैं. एम्फिजिमा का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, मैं ऐसा ये कहती हूँ कि एक जो हमारा जो फेफड़ा होता है ना, वो होता है लिटरली लाइक अ स्पॉन्ज. बहुत नाजुक है, वेरी डेलिकेट ऑर्गन, बहुत नाजुक ऑर्गन है, और एम्फिजिमा में ये और भी डेलिकेट हो जाता है. आई मीन, इट्स वेरी वेरी फ्लिम्जी लंग बोल सकते हैं हम. बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही पतला सा, पतला नहीं बोलूंगी मैं, बहुत ही थिन हो जाता है. तो स्पॉन्ज समझ लीजिए, स्पॉन्ज जो ऑलरेडी स्पॉन्ज है वो और भी थिन हो गया है. ऑलराइट. इसीलिए एम्फिजिमा ऐसे मरीजों में ना बहुत कॉमन रहता है कि छोटे छोटे एयर पॉकेट्स, हम जिनको बुल्ला कहते हैं, तो वो दोनों भी फेफड़ों के दोनों तरफ में, ऊपर हिस्से में, नीचे हिस्से में, या पूरा के पूरा फेफड़ा, दोनों भी फेफड़े जो है उसमें भरे हुए हो सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली एयर पॉकेट्स बंद तो जाते हैं, लेकिन ये हमारे ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. दैट मीन्स दे आर लिटरली यूजलेस. They're not contributing in each and every respiration, which means, तो इसीलिए इसमें सर्जरी हम दो प्रकार से कर सकते हैं. अगर बहुत ही छोटे एरियाज में है, एक ही फेफड़े में है, ज्यादा तकलीफें नहीं है, पेशेंट का बाकी फैक्टर्स सब पैरामीटर्स ठीक है, तो हम इनकी दूरबीन से उतने नॉन कंट्रीब्यूटिंग जो हिस्सा है और वो जो बुल्ला है या एयर पॉकेट है उसको हम निकाल दें. तो हम उसको मैं कहती हूँ की होल सर्जरी द्वारा, या फिर वैट्स, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा. तो या तो हम उससे निकाल दें, बट अनफॉर्चुनेटली देर आर ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें ये दोनों भी फेफड़ों में पाए जाते हैं. That is very sad then, because in that case आपको छोटे इस तरह की सर्जरी सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगी. You will have to think on the lines of doing or getting a lung transplantation. So I would say that is the end, or the end treatment of severe emphysema which is spread in both the lungs. सो मैम, इसोफेगल कैंसर कैसे ट्रीट किया जा सकता है सर्जरी से? हाँ, ये सीसोफेजियल कैंसर डिपेंडिंग अपॉन कौन सी रीजन में कितना बड़ा ग्रोथ है, और ज्यादा बर्डन है ट्यूमर का या कम बर्डन है एंड ऑल, इसको भी हम इस सर्जरी से, मैं अगेन की होल मैं इसकी स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि की होल सर्जरी द्वारा हम इसोफेगस के वो जो कैंसर वाला जो हिस्सा है उसको निकाल सकते हैं. सो की होल सर्जरी यानी कि वैट्स या रोबोटिक्स, तो या either of the way. So you can take it out or you can remove it. ओपन थैलेक्टोमी और मिनिमल इन्वेसिव थोरेसिक सर्जरी में क्या अंतर आता है? हाँ, so open thoracotomy is nothing but it's a 25 to 30 centimeter एक बड़ा कट लगता है चेस्ट में, या अगर राइट में ऑपरेशन करना है तो राइट में एकदम साइड में, या फिर और पीछे तक जाता है, and नहीं तो otherwise the left side. So जहाँ भी whichever area you are operating, and then आपको actually जो chest है वो आपको spread करना होता है, so literally like
जो हनुमान ने किया था, हम्म। छाती फाड़ के अपना ऐसा, हम्म। बट लिटरली वी आर स्प्रेडिंग दैट चेस्ट अवे। सो ये सारी पसलियां, उस पे प्रेशर आता है, सारे पसलियों के बीच में, हर पसली के ऊपर, हर पसली के नीचे नसें होती है, नर्व्स जिसको हम कहते हैं, तो उन सब पे प्रेशर आता है, वो सब उनके ऊपर काफी ट्रैक्शन आता है। सो इसीलिए, और ऊपर से लाइक आई सेड 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसिजन, सो इट्स रियली इट्स बिग, लाइक मोर, इट्स डबल देन व्हाट आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस। सो यस, इसको हेंस हीलिंग, इसको टाइम लगता है। लिटरली आप जब आपका काम रिज्यूम करते हैं, या फिर आफ्टर द सर्जरी, आफ्टर ओपन थोरेकोटॉमी, आप जब काम व्हेन यू आर गोइंग बैक टू योर वर्क, सो इट टेक्स यू मे बी लाइक 2 months, मतलब 8 weeks मिनिमम। या फिर अगर आप ड्राइवर, फॉर एग्जाम्पल देयर आर ड्राइवर्स एज वेल, तो आई वुड रिकमेंड देम टू स्टार्ट ड्राइविंग आफ्टर 8 to 10 weeks, मतलब लिटरली Okay. 2.5 महीने बाद। तो दीज आई मीन, सो हर तरह के पेशेंट आते हैं, which means many of them probably they may be daily wage workers, which we really don't understand, or we don't take enough of time or effort to go into their social history. It's very difficult nowadays for sitting at home 2.5 months or 3 months not earning anything, है ना? Hence, hence comes into the picture is your VATS or keyhole thoracic surgeries। एक छोटा सा कट होता है, 3 to 4 सेंटीमीटर का कट होता है, वही साइड में होता है, चेस्ट में, और इसमें हम छाती को नहीं स्प्रेड करते हैं, उसी एक होल होता है, उसी होल द्वारा कैमरा और सारे जंत्र जाते हैं अंदर, और सारा ऑपरेशन उसी द्वारा होता है। एंड बिकॉज इतना स्प्रेडिंग नहीं है ज़रूरत, इतना बड़ा इंसिजन नहीं है, बड़ा स्प्रेडिंग नहीं है, हीलिंग जल्दी होती है। मेरे सारे मरीज ऑपरेशन के बाद सेम डे इवनिंग, या वो बेड पे उठकर बैठ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नेक्स्ट डे वॉक करते हैं। ऐसे मरीजों को कोई कैथेटर नहीं लगता है, मोस्टली यूरिन कैथेटर भी नहीं लगता है Yeah. मेरे मरीजों को। एंड थर्ड डे दे गो होम, लिटरली। अब ऑपरेट, लाइक अभी तो हमारा इतना तो हो गया है, काफी कर लिया है सर्जरीज, majority ऑफ देम दे गो होम बाय थर्ड डे और एट द मैक्स फोर्थ डे, है ना, वर्सेस 8th day or 10th day when you're doing a thoracotomy। So yes, आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट्स। एंड अगर if they are like if they are desk job workers, for example, they're professionals, they need to resume office, they can resume office after a week. So it can operate, ma'am, physically, manually, or robotically? Robotically, yeah, I can say thoracoscopically, which means camera, which means you put in a camera, जैसे laparoscope जो हमारे जो बाकी जो surgeons हैं वो laparoscopy करते हैं, वैसे ही thoracoscopy होता है, you put in a camera through that same hole and you do they do whole surgery। So it would be less painful. Oh yes, of and course, it is blood definitely loss less भी- painful। So most important part, I think, recovery में, हमारी thoracic surgery में recovery के, early recovery के लिए होता है पेन को आप जितना कम कर दोगे, पेशेंट है उतना अच्छा सांस लेगा, और जितना अच्छा सांस लेगा फेफड़ा उतना अच्छा फूलेगा, उतना अच्छा एक्सरे आएगा, and then the drain comes out and next day he is in a position to walk and all of that। So पेन क्योंकि हम स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, पसलियों को स्प्रेड नहीं करते हैं, छाती नहीं फाड़ते हैं, तो इसीलिए पेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। एंड इसीलिए पेशेंट्स का उनका हीलिंग भी जल्दी होता है। आईसीयू स्टे, मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट नीड आईसीयू स्टे, हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज मिलता है। एंड ऑपरेशन के बाद भी मेनी ऑफ माय पेशेंट्स दे हैव नॉट कंप्लेन कि मैम पेन हो रहा है, मैम पेन हो रहा है, मैम पेन, नो, आई हैव नॉट हर्ड। but yes, if it is a thoracotomy, then it's a completely different situation altogether। Many of them they land up with मैम ये मसल वीक हो गया है। मतलब एक तो पेशेंट है जिनके हार्ट का सर्जरी करना है, द होल फोकस इज मैम मेरा थोरैकोटोमी हुआ था 3 साल पहले, 4 साल पहले, माय मसल इज नॉट वर्किंग। हालांकि he's completely fell, he fine, like he's completely well, he's fine with his previous surgery, but I think उसका जो long term impact उसने जो thoracotomy ने छोड़ दिया है, it has made him literally mentally crippled if not physically। So these are the kind of impact two type of patients, two different type of patients can have depending upon उनको किस तरह का surgery या approach offer किया गया है।
मेरे अगले सवाल चेस्ट ट्रॉमा पेशेंट के लिए आपने ये जवाब दे दिया मैम। मेडिस्टिनल मास को रिमूव करने के लिए कौन-सा सर्जिकल अप्रोच यूज़ किया जाता है? Again, I think mediastinal mass most common इसमें thymus thymomas आते हैं, myasthenia myasthenia gravis है, thymomas and बाकी के tumors आते हैं, and we can do it by VATS. Again, keyhole thoracic surgery है, चाहे आप चेस्ट कोई किसी साइड से करो चेस्ट से, या तो फिर आप ये जो ब्रेस्ट बोन है उसके जस्ट नीचे से एक छोटा सा होल करके सब जाइफॉइड अप्रोच से, और यू कैन डू इट बाय रोबोटिक्स, सिंपल। पोस्ट थोरेक्टोमी पेन को कैसे मैनेज किया जाता है मैम? एज़ यू आर अ ओनली सर्जन इन नागपुर, तो वी वांट कि हमारे जो दर्शक हैं और ऑल ओवर फ्रॉम विदर्भ वो एक सही सर्जन को चुने। तो पोस्ट जो सर्जरी का पेन है और ट्रॉमा है उससे कैसे उबरा जा सकता है? सो आई थिंक यस, जैसा मैंने बताया है, थोरेकोटॉमी अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली चांसेस है, वेरी हाई चांसेस उनको बाद में भी पूरा हील हो जाने के बावजूद भी उनको पेन एंड ऑल होंगे। सो मेनी ऑफ दीज पेशेंट्स दे रिकवर विद दिस पेन, बस टाइम लगता है। तो कभी कभी हम सिर्फ बेसिक पेन टैबलेट्स देते हैं, तो 3 months 4 months थोड़ा बहुत उनसे भी हम वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ resilience। मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आर रेजिलियंट एंड देन इवेंचुअली दे रिकवर। लेकिन जिनका 6-6 महीना फिर चलता है, उनको फिर नर्व एंट्रैपमेंट्स या फिर नर्व के प्रॉब्लम्स, आइडियली दे हैव नर्व प्रॉब्लम्स, अंडरलाइंग नर्व प्रॉब्लम्स, सो उसके लिए फिर हम उनको नर्व इंजेक्शंस देते हैं, पेन पैच देते हैं, या फिर हायर टाइप लाइक हायर लैडर ऑफ एनाल्जेसिक्स या पेन किलर्स। मोस्टली दीज आर द टेक्निक्स बाय which you need to do, which we manage the pain after a thoracotomy. Most important is कि ये जो patients होते हैं, काफी लोग they are very prone to develop frozen shoulder. So thoracotomy अगर मैं जभी भी करूँ या करना पड़े, for example by any means I have to do thoracotomy, I make sure that I give them exercises, shoulder exercises immediately after, just before the discharge. Just before the discharge, I suggest them to do these exercises, and they do it for next 2 to 3 months. That will that will avoid that will keep your chest muscles intact and in full functioning state, and will not allow the development of frozen shoulder. एक क्वेश्चन मैम मेरे माइंड में था। कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो कि काफी ज्यादा चेन स्मोकर्स हैं। आपका काम जो है वो सर्जरी का है, बट आप बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। दे आर ट्राइंग टू लीव स्मोक बट उनसे नहीं हो पा रहा है, एंड दिन के 2-3 पैकेट्स खत्म हो जा रहे हैं। सालों से दे आर चेन स्मोकिंग में है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैम व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम? So yeah, I think अब तो काफी rehab outlets, I would say rehab outlets है, जगह जगह है। There are smoking helplines, government ने भी बनाई है, private NGOs are also running on those lines. They should reach out to these kind of smoking helplines या फिर rehab options, and market में भी काफी चीजें available है। I don't think so they are over the counter drugs, but I think yes, nicotine patches hai available, tablets hai, and some herbal stuffs are available in the market. And again, they just need to come in contact with the right people who can suggest them these options or and help them come out from these kind of smoking addictions. सो मैम आने वाले समय में किस तरह के इनोवेशन और रिसर्च पर आपका ध्यान रहेगा? ऐसे इनोवेशन और रिसर्च का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे फील्ड में, है ना? अभी अलग-अलग तरह से अलग-अलग जगह से, मतलब कहते हैं मिनिमली इन्वेसिव का दौर है, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का ज़माना है। तो अभी इंसिजन बोलो या एक्सेस जितना कम से कम हो जाए, लोग उतना अच्छा उतना प्रेफ़र करते हैं। सो आई वोंट बी सरप्राइज़ कल को अगर किसी ने कहा कि नाक के द्वारा उन्होंने बस अंदर एक स्कोप डालकर उन्होंने पूरा आधा फेफड़ा निकाल दिया। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, ओके? So that will be like literally the extreme of innovation anybody can do.
in thoracic surgery. अगर मैं कुछ transplant की बात करूँ, transplant itself is undergoing a lot of revolutionary changes in itself, क्योंकि transplant में भी हम actually छाती फाड़ कर literally पूरा का मतलब ऐसे छाती literally spread करके, Like हनुमान जी। हाँ बस हनुमान ने ऐसे किया था तो हम ऐसे करते थे. I really say that we are not we're like next to हनुमान. So ऐसे हम लोग करते हैं operations. But उसमें भी अब people are doing transplantation by robotics. Not here, definitely not here, not in India, but I think Spain. So in Spain, there is a team who has already done robotic lung transplantation. So I would really want to see that happening. I would really want to do it by myself and offer those kind of services here as well. मतलब minimally invasive lung transplantation. In short, minimally invasive lung transplantation वो भी मैं चाहूंगी कि हो, वो जो शैली है सर्जरी की वो डेवलप हो. मेरा लास्ट क्वेश्चन मैम, किन्हें जरूरत पड़ सकती है थोरेसिक सर्जन की और कब कब हमें कितने टाइम में स्क्रीनिंग इसकी करानी चाहिए? हाँ, so it's a good question, but it's a very important question. एक तो मैं दोनों का एक साथ ही मिक्स करके जवाब देना चाहूंगी. हाई रिस्क कैंडिडेट्स जो होते हैं, जैसे जिनके घर में ऑलरेडी किसी का लंग कैंसर हुआ है, फैमिली में उनके पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को, तो दे डायरेक्टली बिकम अ रिस्क. दूसरा, लाइक योर क्रॉनिक स्मोकर्स जो बहुत सालों से, प्रेफरेबली लाइक 20 years से, for example, they are into smoking, or they are into these kind of smoking addictions. तो again they are very high risk. And तीसरा of course कि भैया और भी दूसरे बॉडी में और भी दूसरे कैंसर्स हो चुके हैं, and then मतलब एक बार कैंसर कहीं और हुआ है तो there is a high chance they automatically become more risk for developing a cancer again in the lung. So ये risk factors है लंग कैंसर की स्क्रीनिंग के. ऐसा अगर होता है तो उन्होंने literally they should reach out to their thoracic surgeon. They should definitely reach out and then they should get screened. Screening is very easy. It's a very easy tool. You just get a low dose CT scan done, and अगर उसमें थोड़ा भी कुछ शैडो रहता है तो then we just हम उसको अपनी निगरानी में रखते हैं, and either we repeat it every 6 monthly or annually depending upon वो कौन से प्रोटोकॉल पे जाता है. तो वो लो डोज स्क्रीनिंग CT स्कैन हमें जरूर करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अवॉइड स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ दैट रिहैब ऑप्शंस which we already give. Esophagus cancer का भी those who are into like excess, not just excessive smoking but also eating absolute spicy foods and all, chronically उनका spicy foods, जैसे for example नागपुर is famous for साउजी food. Yeah. तो बहुत है हमारे आसपास में जो साउजी फूड को literally they prefer the साउजी style. तो ऐसे लोगों में कॉमन है esophagus कैंसर होने का चांसेस इन फ्यूचर. तो ये लोग हमेशा एक हाई रिस्क में रहेंगे, एंड दे शुड कम अंडर द radar and they should get investigated as early as possible by speaking to their thoracic surgeon. कौन से पेशेंट्स या कौन से मरीजों को thoracic सर्जन की जरूरत पड़ेगी, thoracic सर्जरी की जरूरत पड़ेगी? तो there are multiple. कैंसर एक है, टीबी के सारे मरीज जो है, तो टीबी चली तो जाती है बट अनफॉर्चुनेटली ना वो कुछ ना कुछ दाग छोड़ जाती है फेफड़ों में किसी ना किसी तरीके से. फॉर एग्जांपल ब्रोंकिएक्टेसिस, फंगल बॉल, या फिर कुछ ना कुछ निशानी, नहीं कुछ तो पस या इन्फेक्शन, ये सब छोड़ के जाएगी. तो दीज आर रियली अपफ्रंट इंडिकेशंस कि आपने आपके thoracic सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए. Then one more, I would say emphysema we've already discussed. या COPD के साथ जो emphysema होता है, again you need a thoracic surgeon for that. And एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो literally हमारे आसपास रहते हैं ऐसे लोग but then they don't take or they don't know what they are going through, and that is excessive sweating of face, excessive sweating of palms, excessive sweating of soles, excessive sweating of axilla. So the particular areas, these particular areas. So in case of excessive sweating jab hoti hai, that is a pathology. That is not something, that's not a personality disorder. That is a disease in itself, and it has a treatment. You should seek the help of your thoracic surgeon. आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, and उसकी भी surgery
मतलब इन सेलेक्टेड केसेस उनकी भी सर्जरी होती है या होनी चाहिए। एंड यस, एंड लाइकवाइज दीज आर जस्ट बेसिक मैंने बताया है। हमारे आसपास ऐसे डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं या मरीज या लोग होते हैं जिनमें ये साइलेंटली चल रहा होता है। What does it indicates, ma'am? Just अगर किसी के armpits पे बहुत ज्यादा sweat आ रहा या है, इसको हम face पे sweat, हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, Okay. व्हिच मींस द स्वेट ग्लैंड्स दे आर गेटिंग ट्रिगर्ड टू मच टाइम्स एज कंपेयर टू ए नॉर्मल इंडिविजुअल। तो जब ऐसा होता है तो हमें वो नर्व को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है। तो फिर क्या है कि इसका जो ट्रिगर है वो फिर धीरे-धीरे ये वैनिश होने लगता है। एंड या आई थिंक दीज आर वेरी रिवॉर्डिंग पेशेंट्स and these surgeries are very rewarding and they get many of these patients so they have a lot of social embarrassment. These people they undergo a lot of social embarrassment, इतने इसलिए वो बोल नहीं पाते and बहुत ज़्यादा actually अपने वो discuss भी नहीं करते अपने colleagues से that I'm suffering from these are kind of illnesses. So I think ऐसा नहीं है, there is nothing to worry or there is nothing to feel embarrassed about it. And if you have it, you just seek the help of the thoracic surgeon, of your thoracic surgeon, and it then can be cured. yeah, of course it can be cured. मैम मैं बार बार ये कह रही हूँ कि माय लास्ट क्वेश्चन, बट आपकी इन बातों से मुझे एक और क्वेश्चन आया। नाउअडेज लाइक सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, पीपल हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स, तो हम ओरली किसी के फिजिकली कांटेक्ट में जाते हैं। इफ अ पर्सन किसी के पास में अगर ऐसी हिस्ट्री रही है किसी की एंड वी आर कांटेक्टिंग हिम, तो आर देयर चांसेस टू गेट? I think so. The airborne infection, droplet infection, yeah, airborne diseases. सबसे common is TB, tuberculosis. So I think airborne diseases. So TB, अगर suppose you don't know that the person is having a TB, so and active TB मतलब कि florid TB. So उनके अगर उनको होता है तो फिर आपको भी हो सकता है, यानी उनके पार्टनर को भी हो सकता है TB, and these are the common, that is the commonest disease that can be easily kind of transferred by this medium. So all right, it was all about thoracic surgery. डॉक्टर शिल्पा गांधी जी अपने व्यस्त समय में हमें जो इतने महत्वपूर्ण विचार और अनुभव साझा किए हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपकी मेहनत, समर्पण और उपलब्धियां न सिर्फ नागपुर बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायी हैं। हम आपके आने वाले कार्यों और योगदान के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। Thank you so much for being with us, ma'am. Thank you, Ms. Nisha. Thank you for having me.